ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਆਰਮੀ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਜਾਏ 2-3 ਵਾਰੀ, ਉੱਥੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਲਵੇ, ਪੇਪਰ ਲਵੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੂਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਰੈਗੂਲਰ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ ਮੈਥ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਭੌਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਤਰਕ। ਮਾਤਰਕ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ। ਮਤਲਬ ਮਾਤਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਘੰਟੇ ਹੈ, 4 ਘੰਟੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਆਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਨ ਲਓ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੋਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ, ਮਾਤਰਕ। किसी वस्तु को नापने के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चाहे आप दूरी मन्नीए, चाहे आप समय है ना, चाहे लंबाई है, चाहे कोई होर चीज़ है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਤਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ठीक है, तो इस तो सब तो पहला की है जिवें लंबाई है। लंबाई का जिहड़ा SI मात्रक है की है, मीटर है। तो ਇਹਦਾ सिंबल क्या होगा, M। उस तो बाद की है जिहड़ा वजन या जिन्हों आप वेट लिखते हैं या द्रव्यमान, ये लिखते हैं आप किलोग्राम च। kg। अगला है समय यानी टाइम। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ SI मात्रक है वो सैकेंड है। ठीक है, उस तो बाद की है विद्युत धारा है। विद्युत धारा की होंदा है करंट, यानी आप की च लिखते हैं एम्पीयर च A। ठीक है, अगला है ताप। ताप आप की च लिखते होंगे हाँ, यानी जो टैंपरेचर है, टैंपरेचर आप कैलविन च लिखते होंगे हाँ, के। नंबर 6 की है ज्योति तीव्रता, जी आप की च लिखते हैं कैंडला, CD। ठीक है, एक ही है ये कुछ जोड़े मात्रक है जोड़े यूज़ होंगे हैं, जोड़े पेपर च आते होंगे, आपको आने चाहिए है। ठीक है, उस तो अगला की है गति। आप गति पढ़ांगे। गति चों एक होंगी है अदिश राशि, दूसरी है सदिश राशि। एक क्वेश्चन पक्का होंगे भी वो अदिश पूछ ले या की पूछ लेंदा है, सदिश। अदिश की होंगी है जिसका परिमाण हो, सिर्फ की हो उहदा परिमाण हो, लेकिन दिशा न हो। तो सदिश की होंगी है जिसका परिमाण व दिशा दोनों हों। मतलब की है, फर्क की है सदिश ते अदिश च। जी आप अदिश है वो कला आपको दसना पऊ, जिवें मान लो दूरी, आप दूरी आए दस दें भी असीं 5 मीटर गए, 10 किलोमीटर गए, 50 मीटर दूर गए।
ठीक है। और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਨਾਰਥ ਕੰਨੀ ਗਏ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੰਨੀ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਦਿਸ਼ ਹੈ, ਸਦਿਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਅਦਿਸ਼ ਅਤੇ ਸਦਿਸ਼ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਰੱਖੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਿਆਮਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਵਿਆਮਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਲ 'ਚ ਵੀ, ਆਇਤਨ 'ਚ ਵੀ, ਕਾਰਜ 'ਚ ਵੀ, ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ, ਵਿਦੁਤ ਧਾਰਾ, ਤਾਪ ਹੈ, ਦਾਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਵੇਗ, ਵਿਸਥਾਪਨ, ਬਲ, ਤਵਰਨ, ਇਹ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤਵਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ। ਫੋਰਸ ਹੈ, ਬਲ ਹੈ, ਵੀ ਫੋਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ ਦੱਸਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਦਿਸ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਦਰਵਿਆਮਾਨ, ਚਾਲ, ਆਇਤਨ, ਕਾਰਜ, ਸਮੇਂ, ਊਰਜਾ, ਵੇਗ, ਵਿਸਥਾਪਨ, ਬਲ, ਤਵਰਨ ਕਿਹਦੇ ਹੈ, ਸਦਿਸ਼ ਰਾਸ਼ि ਦੇ एग्जाम्पल है। अगला है दूरी व विस्थापन। की हुंदी है दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई। किसी कोई भी चीज़ है कितों भी जा रही है, वो जिन्नी लंबाई तय करूगी वो दूरी है। विस्थापन, विस्थापन की होंदा है, यानी प्रथम लिख लो, प्रथम व अंतिम छोर के बीच की दूरी की होंदी है, विस्थापन होंदी है। मैं एग्जाम्पल तुम दिना वो तो समझ आ जाओ। मान लो कोई बंदा ए ते है, वो बी ते चला गया, सी ते चला गया तो डी ते चला गया। ए ते बी दे विच जिहड़ी डिस्टेंस है कितनी है, 5 मीटर है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये डिस्टेंस भी 5 मीटर ही है। ठीक है, आपां पहलां की कढांगे, ए टू बी, पहलां दूरी फिर विस्थापन। वो ए तो बी गया, दूरी अपन पता लग गई 5 मीटर है, क्योंकि आप जितों चलिया उत्थों देखना है भी दूरी कितनी होगी, 5 होगी। हुण विस्थापन देखना है, विस्थापन आप देखेंगे पहला छोर उहदा ए है तो एंडला किहड़ा है बी, तो मतलब विस्थापन भी कितना है, 5 ही है। दूरी तो विस्थापन बराबर आया ए तो बी। हुण क्या आ गया, वो सी ते आ गया। मान लो हुण आप ए टू सी दूरी कढांगे, ए टू सी विस्थापन कढ़ रहे हैं। हुण पता है ए तो बी 5 है तो 5 ए, यानी 5 ते 5 10 मीटर की होगी अपनी दूरी होगी। हुण विस्थापन की है, विस्थापन आप पहला छोर तो आ रहा अपना ए तो अंतिम आ रहा, आ दूरी कढ़ांगे। ठीक है, भी उहदे च तां एक्चुअल जिहड़ी सीगी सच च उन्हें कितनी कवर करी है, 5 ते 5 10 करी है। पर विस्थापन की देखेंगे भी वो शुरू कितने सी तो एंड च कितने है, घट तो घट जी दूरी होगी वो विस्थापन है। तो आप पाइथागोरस नाल कढ़ांगे तो कितना होगा, 5√2 यानी 5√2 जिहड़ा मीटर है वो आऊगा। आई समझ, पाइथागोरस पता होगा भी आप जिहड़ा बेस है तो जिहड़ा परपेंडिकुलर होंदा है उन्हों का जिहड़ा स्केयर ऐड करते होंगे वो हाइपोटेनस के बराबर होंदा है। ठीक है, उस तो बाद की कर रहे हैं आप, हुण आ गए ए टू डी, आप दूरी कढ़ांगे तो विस्थापन भी कढ़ांगे। हुण दूरी देखो 5 10 तो 15, हुण 15 तय करिए तो 15 होगी, क्योंकि 5 आई आया ना, वो डी तक आ गया। हुण विस्थापन आप अंतिम छोर डी ते उहदा, तो पहला की है ए, मतलब ये दूरी तो कितनी है, 5 ही है। समझ आई की है भी आप विस्थापन पहला तो अंतिम छोर देखना है। हुण 5 की डिस्टेंस रही है तो 5 है, पर दूरी 15 है उसकी। हुण वापस मान लो ए तो ए आ गया, ए टू ए दोबारा गेड़ा कट के आ गया, तो दूरी कितनी होगी उसकी, दूरी तो उन्हें 20 कर ली ना, 5 10 15 तो 20, तो विस्थापन कितना हो गया,
विस्थापन ਉਹਦਾ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ प्रथम छोर ਤੇ अंतिम छोर ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਹੀ ਹੋਗਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਸਥਾਪਨ ਤੇ ਦੂਰੀ ਦਾ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਦੂਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੋਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। एक एग्जाम्पल मैं सर्कल का करा देना थोनों। जिवें सर्कल है ना, तो मान लो ए तो चलिया वो बी च पहुँच गया। तो मान लो ए तो जे वो बी तक इत्थों तक आ रहा है, ए तक की है ये दूरी है, तो विस्थापन की होगा, विस्थापन आ होगा। यानी आप नूं पता आर होंदी है, आ भी आर होंदी है। दूरी तो ए तो बी की आऊगी, ये पता अपन सारा की होंदा है 2 पाई आर, तो ये तो अद्धा ही है तो 2 नाल कर देंगे, यानी ये पाई आर आया। तो जिहड़ा ए तो बी जिहड़ा विस्थापन है वो कितना होगा 2 आर आऊगा। ओके, हुण जे मान लो वापस वो ए ते आ जाता है, ए टू ए, तो दूरी तो की हो जूगी पता अपन 2 पाई आर हो जू, क्योंकि आप एक्चुअल लवांगे जी उन्हें एक्चुअल च कवर करी आ कवर करी है। तो विस्थापन अपन पता भी ए तो ही चलिया सी, ए थी दोबारा आ गया 0 है विस्थापन। ओके, उस तो अगला की है दूरी कभी भी 0 या नेगेटिव यानी ऋणात्मक नहीं हो सकती। ए जी विस्थापन है ये हो सकती है 0 या नेगेटिव हो सकती है। ए की है दूरी, दूरी अदिश राशि है, दूरी की है अदिश राशि, तो ए की है सदिश राशि है। पता ही अपन भी उच्च दा अपन डायरैक्शन देखी सी भी हाँ कित्थे है, पहला कित्थे है, तो एंड च कित्थे है, कुछ नहीं देख रहे आप, एक्चुअल देख रहे हैं भी किन्नी उन्हें कवर करी है। उस तो बाद मात्रक, मात्रक जिहड़ी दूरी है, दूरी दा मीटर है भी, तो यदा भी की आऊगा मात्रक मीटर ही आऊगा, सेम ही आऊगा। ओके, अगला है चाल वेग। चाल, चाल की होंदी है दूरी बटा समय, यानी निश्चित समय में तय की गई दूरी नूं आपां की कहांगे चाल कहांगे। तो वेग की कहांगे, वेग कहांगे विस्थापन बटा समय। निश्चित समय में तय किया गया विस्थापन, ठीक है। तो हुण पता ही आपां नूं दूरी कदे नैगेटिव नहीं हुंदी ना 0 होवे, तो फिर ये तो 0 तो नेगेटिव हो सकती है, मतलब ये हो सकता है ना, ये कभी भी 0 या ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये होगा, है ना, ये हो सकता है क्योंकि विस्थापन 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तीसरा मात्रक, मात्रक एदा है मीटर प्रति सैकेंड। मीटर प्रति सैकेंड किवें, मतलब ये मैंने पता है दूरी आप की लिखते हैं मीटर च लिखते हैं, तो समय की लिखते हैं सैकेंड च, तो की मात्रक आया मीटर प्रति सैकेंड। सेम ही एदा आऊगा मीटर प्रति सैकेंड। ओके, उस तो बाद जिहड़ी चाल है, चाल अदिश राशि है, तो वेग की होगा सदिश राशि होगी, की होगी सदिश राशि। अगला है त्वरण। त्वरण को आप बोलते हैं एक्सलरेशन। एक्सलरेशन यानी वेग में परिवर्तन, जोड़ा आप वेग हुणे पढ़िया ना, चाल वेग, वेग च जोड़ा परिवर्तन आऊगा वो की होंदा है त्वरण होंदा है, ठीक है। वेग में परिवर्तन
को त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो की आ जाऊगा वेग बटा समय त्वरण। ओके, तो फिर ਇਹਦਾ ਮਾਤਰਕ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਾਤਰਕ ਆਇਆ मीटर पर सैकेंड स्केयर, क्योंकि वेग की होंगे वेग मीटर पर सैकेंड होंगे तो समय की होंगे सैकेंड, यानी मीटर पर सैकेंड स्केयर। ये मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है किदा? त्वरण का। तो त्वरण की है? त्वरण सदिश राशि है भी, याद रखियो, इंपॉर्टेंट है। उस तो बाद मान लो जे तुसी कोई चीज़ ऊपर सट रहे हो या उपरों नीचे आ रही है तो एक फिक्स स्पीड नाल आउंदी है, मतलब फिक्स स्पीड उसकी चेंज होंदी रहती है, मतलब एक्सलरेशन कितना चेंज होंदा है उन्होंने जी कहने आपां, उहदी वैल्यू होंदी है 9.8 मीटर पर सैकेंड स्केयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपां वैल्यू याद रखनी है भी, मतलब जिहड़ा गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इहनूं, गुरुत्वीय त्वरण है ना, भी जिहड़ा अपनी अर्थ का एक्सलरेशन है वो कितना है? 9.8 है ना। इस करके ये इंपॉर्टेंट है। तो मून का है, मून ते जिहड़ी है यानी चंद ते जिहड़ी जी की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1.6 मीटर पर सैकेंड स्केयर। ऐसे करके भी मान लो जे थोड़ा वजन 60 kg है किहदे ते? धरती ते, है ना, यानी पृथ्वी ते, तो थोड़ा मून ते जिहड़ा वेट है कितना होगा? 10 किलो होगा। काहदे करके? क्योंकि उत्थे जी की वैल्यू 1.6 है। ठीक है, अपनी 1/6 है। इस करके अपना जो वजन है वेट है वो भी 1/6 हो जू, किदे करके? त्वरण करके, एक्सलरेशन करके। अगला है भी न्यूटन के गति नियम। न्यूटन के गति के नियम। सब तो पहला आपां पहला नियम पढ़ांगे, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम पता की कहता है भी जे कोई चीज़ रुकी हुई है तो वो रुकी रहूगी, जे कोई चीज़ चल रही है तो वो चलती रहूगी। आई समझ भी जे कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहूगी, उन्होंने जो चलाना है तो फोर्स लानी पऊगी। जे कोई चीज़ चल रही है तो जे उन्होंने रोकना चाहते हो तो तुहानूं फोर्स लानी पऊगी। ये कहता है न्यूटन का फर्स्ट नियम। अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति में है तो उसकी अवस्था बदलने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब कि है भी जे कोई चीज़ मान लो तुसीं फुटबॉल में पैर मारता तो फुटबॉल चलती रहूगी, वो कदों तक नहीं रुकती जो तक वो फोर्स नहीं लगती। तो जे कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहूगी, वो आपे नहीं चल सकती जो तक वो फोर्स नहीं ला सकते। फर्स्ट ला नूं जड़ता का नियम वह गैलीलियो का नियम भी कह दें। जड़ता का नियम या गैलीलियो का नियम भी आप कह दें। ओके, है कि यदि एग्जाम्पल एक तो वो है भी मान लो तुसी मान लो बस च बैठे हो, है ना, बस एकदम चलती है तो तुसी अगे नूं जाने हो, वो किहदा एग्जाम्पल है? न्यूटन का फर्स्ट नियम है। जे मान लो बस चल रही है एकदम ब्रेक मार दी अगे जाने, तो जे रुकी हुई है चलती है फिर किधर जाने आप? पिछे नूं जाने। या कई बार मंजा होंदा, मंजे दे आपां सोटी मारते हैं, मिट्टी निकलती है, वो भी किहदा नियम है? गति का पहला नियम है। या आपां कोई मान लो पेड़ है या दरखत है ना, दरखत नूं आपां हिलाउने पत्ते डिगदे हैं तो वो भी की है? जड़ता का नियम है, पहला नियम है। ठीक है। या कई बार की होंदा है जिवें मान लो कोई कार जा रही है तो वो आपकी दिशा चेंज करती है, डायरैक्शन चेंज करती है, तो आपां भी इधर नूं जाने, जो इधर नूं मुड़ रही है तो इधर नूं जाने, है ना। जिवें समान रखा हुआ अगे अगे नूं चला जाता है, इधर डिग जाता है, इधर डिग जाता है,